से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को छोड़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट टॉपिक हमारा ये था कि भैया हम लोग एसी जनरेटर पढ़े थे। एसी जनरेटर में क्या था कि भैया यहाँ तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ना। सो ये अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में हम लोग एक कोई कंडक्टर और या कोई कंडक्टिंग कॉइल अगर मैं कंसीडर कर लूं, सो व्हेन दिस इज एन कंडक्टर, तो व्हेन इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, जब ये कंडक्टर रोटेट होगा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, याद करिए ये सब चीजें हमारी कल हो गई थी। तो व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस इज बी, सो व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कोई कंडक्टर लेते हैं एंड व्हेन द कंडक्टर स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड इट इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, सो ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस coil या due to rotation of this conductor, this line of forces are cutted. Line of force cut होना चालू हो जाएगी and this cutted line of forces produce, ये cutted line of forces क्या बन जाएगा? Change in the magnetic field. It is a change in the magnetic field, and when there is a change in the magnetic field, and according to the Faraday's laws of electromagnetic induction, so we have two laws of Faraday's two laws of electromagnetic induction. Faraday's first law of electromagnetic induction, Faraday's second law of electromagnetic induction. Faraday's first law of electromagnetic induction, whenever there is change in the magnetic field or magnetic flux in the coil, so then EMF is induced in the coil. So that is conductor or conducting coil. So that is called as Faraday's first law of electromagnetic induction. And what is Faraday's second law of electromagnetic induction? E is equals to d phi by dt. The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux with respect to time. So these are the Faraday's laws of electromagnetic induction. दोनों लॉ हम लोग को ये बताते हैं कि when there is a changing in the magnetic field or magnetic flux, then the EMF is induced in the coil, or current is induced in the coil. So then when this conductor is rotating and when this conductor is continuously rotating, so this magnetic line of forces are cutted, and this is due to cutting of magnetic line of forces, this magnetic field is converted into a change in the magnetic field, and according to Faraday's laws of electromagnetic induction, changing magnetic field produces EMF. क्या बनाता है? EMF. और जो EMF बनता है that is called as induced EMF, और जो करंट हम लोग बनाएंगे उसको कहेंगे हम लोग इंड्यूस करंट। सो जो EMF हम लोग यहाँ बनाते हैं, so this is E is equals to this is E naught sin omega t। क्या बनाते हैं हम लोग? E naught sin omega t, where E naught का इक्वेशन याद होगा आप लोगों को, तो this is n into, याद है क्या? This is n into B into A into omega, clear? Where omega is your angular frequency, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होता है? इट इज 2 पाई f, दिस इज 2 पाई f, या 2 पाई बाय t भी ले सकते हैं आप लोग, वेयर f इज अ फ्रीक्वेंसी अगेन। सो दिस इज E naught becomes 2 पाई f n b a, clear? So this is E naught, and where E naught is peak value of EMF. What is E naught? Peak value of EMF. So this is the equation for peak value of EMF in AC generator. किसमें ये? AC जनरेटर। So this is the magnitude of induced EMF. ये induced EMF है due to change in the magnetic flux, या change in the magnetic field. So that is E is equals to E naught sin omega t. So where E is a induced EMF, E naught is a peak value of EMF, and where there is a sin omega t, it means that it is a sine wave. कौन सी वेव रहेगी यहाँ पे? Sine wave, where omega is angular frequency and the t is time. Clear? और यहां से हम लोग E naught का इक्वेशन NBA ओमेगा, अगेन ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज 2 पाई f, सो E naught इज इक्वल टू 2 पाई f NBA। जो करंट हम लोग बनाते हैं, सो दैट इज करंट इज नथिंग बट योर I naught sin omega t। सो अगेन देयर इज अ साइन वेव फॉर द करंट, and this is I is a magnitude of induced current, this is peak value of current, again there is a sine wave, and this is omega is your angular frequency, and there is again time। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। यहाँ इतना हम लोग पहले हम लोग सोच पढ़ लिए थे, फिर हम लोग ने इसकी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बारे में बात की थी, याद होगी तुम लोग को, कि जो हम लोग ईएमएफ बनाते हैं और जो हम लोग करंट बनाते, सॉरी जो हम लोग करंट बनाते हैं, ईएमएफ जो बनाते हैं और करंट बनाते हैं, उसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा फॉर कंप्लीट साइकिल एंड फॉर हाफ साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू कितना होता है, हाफ साइकिल के लिए वैल्यू हमारा कितना होता है। तो हम लोग जब बात करते हैं एवरेज वैल्यू की, सो द एवरेज वैल्यू बिकम्स फॉर ईएमएफ एंड करंट, जो हमारा ईएमएफ यहाँ बनता है और जो करंट हमारा बनता है उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है, इसका हम लोग में एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। सो दैट इज एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? 0.637 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज पीक वैल्यू, यह है आपका फार्मूला, क्लियर? एंड एवरेज वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर हाफ साइकिल ओनली। एवरेज वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट की जाएगी? हाफ साइकिल, because for a complete cycle the average value is 0।
कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितना 0 एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट सो दिस इज फॉर द हाफ साइकिल किसके लिए है ये हाफ साइकिल सो अगर मैं यहां से एवरेज वैल्यू दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0.637 मल्टीप्लाइड बाय पीक वैल्यू अब मैं यहां से एवरेज वैल्यू दोनों के लिए बना दूं मेरे पास में तो ईएमएफ और करंट है मैं दोनों के लिए इक्वेशन बना दूं सो ई एवरेज लिखा जाएगा सो दिस इज ई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 multiplied by E naught so where E naught is again your peak value of EMF so again I average यहां से हम लोग बना ले so again I average is equals to 0.637 multiplied by I naught again I naught is the peak value of so this is the values for induced EMF and induced current for average value of induced EMF and average value of induced current for half cycle किसके लिए ये for half cycle क्लियर और अगर मैं इसको एवरेज के टर्म्स में ले लूं या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के टर्म्स में ले लूं सो V एवरेज हम लोग फिर से बना लेते हैं इसका सो दिस इज 0.6 मल्टीप्लाइड बाय V नॉट अगेन V नॉट इज अ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज V नॉट क्या है आपका पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगेन दिस इज फॉर द कंप्लीट हाफ साइकिल इसके लिए ये हाफ साइकिल अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोग इसलिए बोलते हैं व्हेन देयर इज अ साइन वेव जिस समय हमारी साइन वेव बनती है ठीक है जिस समय हमारी साइन वेव बनती है तो एक sine wave this is again positive half cycle so this is negative half cycle so for the sine wave there is positive and there is negative फिर से positive and फिर से negative there is alternating positive and negative cycles are formed that's why it is alternating voltage इसलिए इसको alternating voltage कहते हैं because this is polarity get reverse at every cycle या every half cycle के लिए polarity क्या हो रही है reverse पोलैरिटी क्या हो रही है रिवर्स यहां पर हमें देखिए दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल नेक्स्ट पोलैरिटी इज नेगेटिव हाफ साइकिल सो फॉर ईच हाफ साइकिल द पोलैरिटी गेट रिवर्स्ड हर एक हाफ साइकिल के लिए पोलैरिटी क्या होगी रिवर्स होगी एंड सेम पोलैरिटी इज रिपीटेड आफ्टर अगेन देयर इज अ नेगेटिव हाफ साइकिल क्लियर अगेन फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल द पोलैरिटी अगेन गेट रिपीट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद में फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल आएंगे फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएंगे सो देयर इज अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इज प्रोड्यूसेस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग ईएमएफ दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द टर्म इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कहते हैं हम लोग सो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का मतलब यही होता है कि व्हेन यू आर गेटिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड व्हेन वी आर गेटिंग द इंड्यूस्ड करंट जब आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है जब आपका इंड्यूस्ड करंट बनता है सो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट आर इन अ साइन वेव एंड व्हेन देयर इज इन द साइन वेव सो वी गेट द साइन वेव्स फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल अगेन देयर इज पॉजिटिव हाफ साइकिल अगेन देयर इज नेगेटिव हाफ साइकिल सो फॉर एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल द पोलैरिटी गेट रिवर्स्ड एंड पोलैरिटी रिवर्स होने के कारण सो आपके पास में पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल मिली बाद में नेगेटिव मिलेगी फिर से पॉजिटिव मिलेगी फिर से नेगेटिव मिलेगी so we get the positive half cycle for every alternating position के हिसाब से मिलती है that's why this terms is called as alternating current circuit इसलिए से हम लोग इसको alternating current circuit कहते हैं क्लियर तो हम लोग बात करते हैं यहाँ एवरेज वैल्यू की एवरेज वैल्यू फॉर द this is average value for half cycle and for the average value for complete cycle के लिए so this positive half cycle and this is negative half cycle so this is positive half cycle and negative half cycles are cancels with each other so that's why for a complete cycle the average value of EMF and average value of current is 0 कितना होता है ये 0 किसके लिए 0 होता है for a complete cycle किसके लिए होगा for a complete cycle it means that average value of EMF and average value of current is only calculated for हाफ साइकिल किसके लिए कैलकुलेट होगा हाफ साइकिल सो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर द हाफ साइकिल ठीक है ये एवरेज वैल्यू की बात हो गई थी हम लोग इसके बारे में बात की थी हम लोग ने आरएमएस वैल्यू किसके बारे में बात की थी हम लोग ने आरएमएस वैल्यू अगेन दिस इज द सेम टर्म्स फॉर दिस आरएमएस वैल्यू फॉर ईएमएफ एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट सो आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ सो दिस इज ईआरएमएस सो ईआरएमएस का फार्मूला क्या था याद होगा तुम लोग को या इसका पहले मैं जनरल फार्मूला बना लूं तो हम लोग बनाएंगे आरएमएस a value is equals to 0.707 of peak value क्या होता है ये peak value अगर हम लोग यहाँ से इसको दोनों चीज के लिए बनाए तो मतलब ERMS कहेंगे so ERMS is 0.707 multiplied by peak value again there is a second representation of 0.707 it's E naught divided by root E naught divided by again there is a second value for this IRMS
IRMS के लिए अगर मैं ले लूं तो 0.707 ऑफ I नॉट, अगेन IRMS का सेकंड रिप्रेजेंटेशन, सो दिस इज I नॉट डिवाइडेड बाय रूट। ये इक्वेशंस थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी बिकॉज हम लोग का भैया जब पावर निकालते हैं तो हम लोग ERMS और IRMS के पावर टर्म्स में निकालते हैं, एंड व्हेन देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ERMS एंड IRMS सो दैट इज कॉल्ड एज एपरेंट पावर, उसको हम लोग एपरेंट पावर कहते हैं। Clear? So these are the basics for the electromagnetic these are the basics for current AC circuit, ठीक है। और फिर इसके बाद में याद होगा आप लोगों को, तो हम लोग ने AC सर्किट की रेजिस्टेंस फेजर स्टेट देखा था। So what is a phasor state? Phasor state for resistance, phasor state for inductance and phasor state for capacitance. So if I am talking about phasor state of inductor, phasor state of resistance, phasor state में resistance, EMF and current are in a same phase. So it means that phase difference between EMF and current are in जीरो। EMF और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना? जीरो। और करंट इंडक्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो EMF is lead by pi by 2 to the EMF EMF is lead by pi by 2 to the current और current is lag by pi by 2 to the EMF। फिर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट अपलोड में फिर से हम लोग देखा था phasor state for capacitance, and what is the condition for phasor state for capacitance? Current is lead by pi by 2 to the क्लियर हो गया इधर, एंड EMF is lag by pi by 2 to the, क्लियर हो गया था यहाँ तक। चलिए फिर इसके सामने अगर हम लोग ने देखा था तो हम लोग ने AC सर्किट विद रेजिस्टेंस, AC सर्किट विद इंडक्टेंस, AC सर्किट विद द कैपेसिटेंस, ठीक है, वो सारी चीजें हो गई थी हमारी। फिर उसके बाद में हम लोग ने AC सर्किट विद RLC कंबाइन भी देख लिया था, अभी देख लिया था क्या। फिर हम लोग ने देख लिया था AC सर्किट विद द पावर, तो मतलब पावर